Hello, hello. Hello, friends. How are you? Welcome to Code Careers YouTube channel. So, today we are going to talk about another data structure, binary heap tree data structure. Okay, so this is most important topic actually for interview perspective and other for users perspective. This is actually used for lot of problem solving, like sorting. To sort an array, you can use sort array. Okay, so we will after that I will work on like a heap sort. So this can be used for sorting an array into n log n prime complexity. Okay, and other lot of graph algos, like spanning trees, other lot of means it is used in graph to solve graph type problem. So we will work on later on. And so let's start now. Binary binary heap tree first. So this is actually this is also a tree only, but this is used means implemented by the array, not from the. This is implemented from the array only, not by like link data structure. Because in other trees like binary search tree and the other tree that we have worked on, means there I was using link, means always creating node, dynamic node, and linking all the nodes using address. So but here we will not do. That's why is faster also, because of we don't have to manage extra. Here you can understand, like in binary search tree, other trees that we have worked on binary tree. So here we have to use actually to store actually one element only. I have to manage two address, address is bucket, sorry, space also. So means extra space we have to use here for the sake of linking the two node actually. Okay, so this is a extra burden for memory actually, and extra time complexity also used for managing and left right, that's way. But here we will work on array only. Means we will design that will always means after creating also tree, it will keep remain only array only. But how I'll it means traverse into the array, that is most important actually. Just like I can say in binary search, binary search, yes, binary search, how we were in traversing into array to search any element by the binary search. This is like a zeroth index, first index, how we were searching. Like first I have to calculate mid. So just like this s and this e. ठीक. So s plus e by 2, that's where we were searching on that. So s plus e, मिड निकालते थे, मिड के बाद में सो दिस कम्स हियर, जस्ट लाइक एग्जांपल दिस मिड कम हियर. So like the first I traverse to this mid only, then after that if in the mid not available, so either go left or right. That way we were traversing. Here also we have some rule to traverse the array. Okay, that's why it's called tree actually. Why? Because we were traversing into array just like a tree only. Just what is the fundamental of tree? Tree should have some root element, then have some left element, then have some right element, then have some left element, then have some right element. Binary, this is binary heap tree, that's why I am using two child only. Okay, left element, right element. So here also we, if we can means we could as uh, design some algo or some concept like, so we can traverse, we could traverse here
this array also this array also like that in like in binary trees. So this is also, तो ये भी क्या कहा जाएगा कि ये भी कहा जाएगा कि ये भी ट्री है। कैसे? जस्ट लाइक हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जीरोथ इंडेक्स है और ये एन है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से कहें कि अगर इसको हम जीरोथ इंडेक्स पे इसको हम पेरेंट बना देते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक वी मेड इट पेरेंट दिस वन। So parent I can say p is equal to 0, and I can add some rule like it to go to left child, this child and this child, left child, left child index. So we can लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स। सो हियर अगर मैं कह सकता हूँ कि ये जो है, अगर लेफ्ट चाइल्ड में आपको जाना है इस एरे में, सो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। लेफ्ट चाइल्ड के लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। जो भी पेरेंट है, पेरेंट को मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं पी की जगह हम आई एज्यूम करते हुए, ठीक है। लेट्स एज्यूम पेरेंट इज आई, हम इसको पेरेंट बोलते हैं, ठीक, पेरेंट। I am actually what I am doing here. I am adding some rule to traverse this array. Actually, I don't want serial way means traversing array. Otherwise, the always complexity will be order of n only. But I wanted to reduce some complexity. Okay, this complexity will be order of n only for traversing one by one. How we were traversing into array simply like 0, first I'll go to I. If I is equal to 0, so I will traverse to I, then I will be incremented by 1, I is equal to I plus 1, then I'll go to, again it means I becomes 1 here, so I'll go to 1, then again I is equal to I plus 1, I becomes 2 here, so it traverse to 2. But I don't want traverse like that way, because I have to traverse by means like the tree. I means we have some concept for root element, left element, right elements. That's way here. So here I am design means making some rule here. Just example, I made actually I as a zeroth index as a root element. So this is parent I can say, and I can say this root also for now, because I add zeroth index just now. Okay, I can add here root of tree, assuming only. Okay, सो अब लेफ्ट के लिए मैं रूल लगा रहा हूँ। अगर लेफ्ट में आपको जानना है ट्री के क्योंकि हम इसको ट्री ही बनाना चाह रहे हैं ना, इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर देते हैं। जस्ट लाइक आई हैव 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो if you want to go, just I, because I is equal to 0, I made it root element, so I can insert it here. Okay, so if you want to go left element, this trees binary trees left element, or I can say for the into the array left element, so you have to do a parent into 2I plus 1. Okay, दिस इज बिकॉज दिस इज पैरेंट। पैरेंट में मल्टीप्लाई 2 + 1 करोगे तब आप लेफ्ट चाइल्ड में चले जाओगे, ठीक है। कैसे? यहाँ पे आप ये पैरेंट आई इक्वल टू 0 पे है। आप अगर इस पे जाना चाहिए, इफ यू वांट टू मीन्स गो टू लेफ्ट चाइल्ड, so what you have to do means surely you have to increment some index, but how many index you have to increment? You can use this formula 2I plus 1 to reach to left child। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली 2 पे जाओगे या 3 पे जाओगे, आप इस फार्मूले के थ्रू इस इंडेक्स पे जाओगे एरे को ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है। यूजुअली वी आर डूइंग ट्रेवर्सल थ्रू दिस रूल, but now I am doing through this rule because I have to make some left child and right child. And for right child, actually what you have to do, 2I 2 into I plus 2. So these two important formulas actually. So if you have some root element, root index in the array, so to find out the child left child and right child, you can assume this formula.
means you can use this formula for left child, you can use this one, and right child you can use this one. Again, if you are at this place, again you can apply the same formula for left child, this formula, right child, this formula, using this index. So for now, is this is actually zeroth index. Okay, zeroth index, and I want to go to left child. So L is equal to 2I plus 1. So 2I is equal to 0. That's why it's become 0 only, and remains only 1. So I can say first index. This is first index, and this is actually left child. And what is the value? I can insert anything here, and not anything, actually first index value only. So first 2, 3, 4, 5, 6. So first index value what is 2, inserted here. Now for right child, 2I plus 2. So 2I is equal to 0. That's why it's become 0 only. And plus 2 means second index. So second index, this is second index actually. So I can insert third, 3 at second index. Now again, I want actually left child of this node, 2 node having value 2, and left right child of no right child of same node only. So because I am just now, actually I am at index I is equal to index 0, 1 index, first index. So what is parent, I can, as because I wanted to add left child and right child, means this becomes, this node becomes actually a parent actually for that child. Okay, for this child actually. So it means now we can assume our parent is equal to first index. So what is will be the left child? 2 into 1 plus 1 becomes 2 प्लस वन, यानी कि थ्री बन जाएगा, ठीक है। सो थ्री इंडेक्स कहाँ पे आएगा? 0 1 2 3, थ्री इंडेक्स का वैल्यू क्या है? 4 है। सो 4 वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी लेफ्ट चाइल्ड में, क्योंकि बिकॉज आई कैलकुलेटेड लेफ्ट। सो इंडेक्स क्या है इसकी? बनी 3 बनी, ठीक। ये इसी प्रकार राइट चाइल्ड भी निकाल सकते हो। क्या होगा? 2 into 1 plus 2 becomes 4। सो फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे। सिमिलरली we can calculate for this node, left child of this node and right child of this node. So for this actually node, because this is for he at this place, I am at second index actually in the array, second index. So second index, this index actually, this index become parent now 2, and for 2 left child will be 2 into 2 plus 1 becomes 5। सो फाइव्थ इंडेक्स यू कैन, फाइव्थ इंडेक्स की वैल्यू जो भी है 6 है, उसको यहाँ पर रख दो। और इसी प्रकार आई कैन सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट 2 into 2 plus 2, okay, becomes 6। So for 6 index I can find out 7, this is 7, so I can add here. So you can assume here this is means a becomes tree only, just like a tree only, but I have structure, I have not changed here, structure same only, structure is array only. And tree also, if you assume similarly in binary tree, you can leave this one for 1 minute, binary heap tree, okay. Let's assume you were on binary tree only, directly binary search tree or binary tree only, ठीक है। वहाँ पे भी देर आल्सो एक्चुअली यूजुअली व्हाट विल डू, I usually we will means this way. We would mostly miss creating this node actually. Where these node are created, I don't know, because this is created in memory any place. Okay, but what we were doing, we were actually linking these node. If I want this node, second node of this node, means इसको हम अगर second node में बनाना चाहते हैं इसके या इसके next, this is next of this node, so I was doing this way. So these address like 100 linking into here, okay. That's why they were means linked actually together and becomes a tree.
Okay, because we were here inserting address directly, left address, right address, but here there is no use of address, means I have to use index only. I have to go through index only. So index is better for searching actually. Okay, and memory purpose also is best. So here, to traverse through index, we have some made some rule, like for लेफ्ट ट्री राइट ट्री. अब यहाँ पे क्या होगा फायदा? एक्चुअली ये हालांकि अगर ट्रेवर्स करना है सारे एलिमेंट पे तो आपको एन ही कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी. Okay, and here we don't have any rule like a binary search tree. There we don't have to means a traverse left child, left subtree or right subtree to find out to search particular element. So here actually this is there is no rule like that. So we have to mostly search, traverse into every node. Every node means order of n complexity only. Okay, but why this is useful? Actually this is useful because of we don't use for searching element. Actually we are mostly used for finding minimum or maximum. ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करना. अब मिनिमम यहाँ पे इफ यू स्टार्टेड फाइंडिंग आउट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम हियर, सो यू हैव टू ट्रेवर्स थ्रो जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ऑलवेज ऐसे करना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी. कितनी जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी. Actually this binary heap created for this purpose only, finding minimum and maximum, means I have to maintain minimum and maximum, so I can find out minimum maximum order of one complexity directly. So how we can do this? So this is not here actually मैंने ऐसे ही क्रिएट कर दिया था, ठीक है, रैंडम एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए. दिस आई कैन से दिस इज बाइनरी हीप ट्री, but this is not useful for finding minimum and maximum. So to find out minimum and maximum, if your requirement to find out mostly minimum or your requirement to find out mostly maximum element, okay, so that then you have to create two ways this binary heap, either min heap, binary tree, binary heap, min binary heap कह सकते हो, min binary heap, ठीक, बाइनरी और हीप ऐसे कर देते हैं, ठीक. और यू कैन क्रिएट मैक्स बाइनरी हीप, मैक्स बाइनरी हीप. तो आपको दो इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा इसको, ठीक है. अब ये मिनिमम बाइनरी हीप और मैक्सिमम बाइनरी हीप क्या है, अब हम लोग इसको इधर समझते हैं. सो मिनिमम इफ यू वांट टू, because your requirement to find out minimum mostly, okay, you have created some this binary, because here you have to first, what are the operations you have to do? First you have to create this binary heap tree, ठीक, बाइनरी हीप आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी. सो टू क्रिएट बाइनरी हीप यू हैव टू इंसर्ट एलिमेंट. सो फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा? इंसर्ट ऑपरेशन. आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा. Okay, and you because sometimes you have created, so later on you have to find out minimum, so you have to get a minimum. तो यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स आप बना सकते हो, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको कोई यूटिलिटी क्लास बनानी है यूजिंग दिस डाटा स्ट्रक्चर टू फाइंड आउट मिनिमम और मैक्सिमम, so you have to you can means create methods multiple ways, like you can implement a get method, get min और max method multiple ways, like आप एक मेथड बना सकते हो get min simply, तो यहाँ पे min फेच कर सकते हो. और एक दूसरा मेथड और बना सकते हो, जैसे कि हमारे पास में पुल और क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसका, पोल और क्या कहते हैं, पोल एक हमारे पास मेथड होता है क्यू में, और क्या होता है, और दूसरा हमारे पास होता है सिंपल पीक एलिमेंट, पीक मेथड होता है. तो पीक में क्या हम लोग करते हैं, एलिमेंट को पीक कर लेते हैं बट वहाँ पे डिलीट नहीं करते हैं. सिमिलरली
यहाँ पे भी हम मिन गेट मिन करेंगे, यहाँ पे डिलीट नहीं करेंगे उस एलिमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके एक मेथड गेट मिन हो गया। दूसरा हम एक गेट मिन की जगह हम यहाँ पे दूसरा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। जो पोल मेथड इंप्लीमेंट करना है पोल के तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे हम अपने तरीके से कोई नाम दूसरा दे सकते हैं, वी कैन गिव एनी नेम, गेट मैक्स, है ना। सॉरी, गेट गेट के लिए ही ओनली, मिन के लिए ही ओनली। गेट मिन की जगह हम एक्सट्रैक्ट मिन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्ट में हम ऐसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम डिलीट भी करना है, तो यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास एक डिलीट ऑपरेशन भी है, ठीक। जब भी आप मिनिमम निकालोगे, मैक्सिमम निकालोगे, फिर डिलीट करोगे, तो इस तरीके से मल्टीपल बहुत सारे ऑपरेशन हम आप परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट गेट मैक्स, एक्सट्रैक्ट मैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम, बिकॉज हियर यहाँ पे एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हम अगर कहें तो ये हमारा क्रिएट हो गया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं फॉर्चुनेटली कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे अच्छा ही बन गया, क्योंकि ये एक्चुअली मिन हीप बन गया है, ठीक है। अब मिन हीप, when I can say any binary heap as a min heap, so we have some rules here. So actually min heap क्या होता है कि यहाँ पे what is min heap? Min heap always parent element, always parent element have a minimum value, parent parent node have minimum value from its child actually. So अगर एज्यूम करें कि ये पेरेंट है, इसके कुछ दो चाइल्ड हैं, तो चाइल्ड से ये मिनिमम हमेशा रहेगा, ठीक, फ्रॉम इट्स चाइल्ड। parent node always have minimum value from its child, from its both child I can say because it is both, because of this is binary. And similarly we have to follow for all other subtrees also, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज फॉर दिस इज एज अ पेरेंट्स नोड, so similarly same rule for I have to follow here also, because this is parent, so left child will always be minimum from its both child। सो यहाँ पे वैल्यू हम क्या आंसर कर सकते हैं, इससे मतलब इस पेरेंट से मैक्सिमम ही होगी चाइल्ड में, ठीक है। तो मैक्सिमम में आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है अदर बाइनरी सर्च ट्री की तरीके से रूल, ठीक है। आप बिकॉज इट्स ऑलवेज शुड बी मैक्सिमम ओनली, ठीक। तो दो से यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, तीन हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि तीन ऑलरेडी इंसर्टेड है। आई डोंट वांटेड टू मीन्स डुप्लीकेट एलिमेंट इन बाइनरी हीप, so I what I can do here, I can add any element other 5 just like 9 ऐसे करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। बिकॉज इट्स फॉलोइंग द रूल बिकॉज ऑफ its parents is lesser from its both child. Is similarly we can add here also some rule we can create. I can add this element, and this child should be max value from this from its parents actually. So I can add anything here. I don't wanted to add here 5 and 9 only. I can add here like 6 and 11 ऐसा करके ऐड कर सकते हैं। इन दोनों के सब ट्रीज के बीच में, इस सब ट्री, दिस सब ट्री, इन दोनों सब ट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आपको कोई रिलेशन नहीं देखना, सिर्फ आपको इसके यू हैव टू चेक फॉर इट्स पेरेंट्स ओनली, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं, एक एक स्टेज और इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि ज़रूरी रहेगा आगे की चीज़ों को बताने के लिए। तो अब now what I have to do, here also you have to follow same rule only, 5 because of this is 5, so I can insert max value 5 is 7 I can say, and other 8. Similarly for the 9 I can add here 10 and 20, anything. So this is min heap, I can say what is called min heap I can say, because of I am following some rule while creating binary heap, okay. Other I can yeah, create max heap. What is the rule of for max heap, okay। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे एक्चुअली, जिन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया हो कि मैक्स हीप का क्या रूल होगा, ठीक है।
सिंपल सा है एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि मैक्स हीप का रूल यहाँ पे क्या होने वाला है। मैक्स हीप में भी वही रूल होगा। अब यहाँ पे मैं बिकॉज आई हैव टू मेंटेन मैक्सिमम वैल्यू एट रूट, व्हाई आई एम मेंटेनिंग योर मैक्सिमम वैल्यू इन रूट, बिकॉज ऑलवेज हमारा रूट जो होगा ये जीरोथ इंडेक्स पे ही रहेगा, और जीरो फॉर द जीरोथ इंडेक्स आई कैन डायरेक्टली मीन्स आई नो माई ऑलवेज ऑलवेज माई minimum value will be at zeroth index only. So anybody if required, so they can fetch directly at they can fetch, just like I can assume this is I can array I have like min array, okay, variable I have min array. So here if you wanted to extract minimum value, so you can directly you can what you can do, min array एट जीरोथ इंडेक्स। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आपको पता है क्योंकि जीरोथ इंडेक्स पे हमेशा मिनिमम मेंटेन कर ही रहा हूँ मैं ऑलवेज, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मिन वैल्यू निकाल सकते हो। तो इतना कम्प्लेक्सिटी लगी, ऑर्डर ऑफ सिंपल इंडेक्स बेसिस पे हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो इस वजह से हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमेशा में, अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे मिनिमम मैंने निकाल लिया फिर दोबारा मिनिमम फिर से निकालेंगे तब कहाँ से मिलेगा मुझे, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए तुम्हें आपको other operations you have to do for that. So you have to maintain always minimum at root place. So how you can maintain, so after means extracting और बिकॉज यहाँ पे अगर गेट मिन किया आपने, तो गेट मिन में क्योंकि आपने डिलीट नहीं करना है, ठीक है, so there is no issue here. But anybody if deleting this minimum, so what does it mean, it means यहाँ पे वन रहेगा ही नहीं। तो अब आपको वन नहीं रहेगा तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कुछ अब कोई ना कोई यहाँ पे रूट बनाना है आपको, क्योंकि अदरवाइज ट्री विल बी ब्रेक्ड हियर। तो इस वजह से आपको कुछ यहाँ पे ऑपरेशन करने, वो हम बाद में देखेंगे। मैक्स हीप को एक बार मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सो मैक्स हीप मीन्स ऑलवेज हमारा पेरेंट मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, और उसके चाइल्ड हमेशा पेरेंट से मिनिमम रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में 20 था, तो अब यहाँ पे हम 20 इसके चाइल्ड जो हैं इस पेरेंट से लेसर वैल्यू रहेगी। सो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक I can add here 10 or I can add here यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई कैन टेकिंग हियर 18 ले सकते हैं, ठीक। सो हियर आई टेकन 18 विद बोथ वैल्यूज एक्चुअली लेसर फ्रॉम इट्स पेरेंट वैल्यू, ठीक, बोथ चाइल्ड्स वैल्यू इज लेसर फ्रॉम इट्स पेरेंट नोड वैल्यू, ओके। Here also I have to follow same rule as I was following here in min binary heap. So here also means ये जो इसके child है, इस parent के इसके जो child होंगे वो इससे lesser होंगे, means I can add here like 5 और यहाँ पे हम 8 ऐड कर सकते हैं। Similarly here I can add 12 and here I can add 15, इस तरीके से। तो ऐसे हम इस प्रकार से दिस इज एक्चुअली मैक्स हीप आई कैन से, ये मैक्स हीप है और ये क्या है, ये दिस इज एक्चुअली मिन हीप, ठीक। अब आपको इसके ऑपरेशंस हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट हियर अदर ऑपरेशंस। सो लेट्स एज्यूम, ओके, काफ़ी बड़ा नोड बन गया हमारे पास में, कोई एक इधर ही आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बार बार टाइम वेस्ट ना करें तो अच्छा है। आई हैव एक्स्ट्रा स्पेस। सो मिन हिप पे पहले हम मिन हिप ऑपरेशंस देखते हैं, ठीक। लेट्स सी हियर। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या, इंसर्ट ऑपरेशन। तो इंसर्ट, हाउ आई विल डू इंसर्ट हियर, फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड। बाय द वे इंसर्ट का मैंने आपको बता भी दिया है, बट फिर से हम एक बार डिस्कस करते हैं इंसर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। इन द बिगिनिंग in the beginning we would have like some I is equal to 0 इंडेक्स, बिकॉज जीरो इंडेक्स पे हमें कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है।
अभी हम मान के एज्यूम करके चलते हैं हमारे पास एरे जो है वो एम्प्टी है, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ओके, बिकॉज वी आर टेकिंग हियर एरेज कॉन्सेप्ट, सो इट मीन्स आई शुड हैव सम मैक्सिमम साइज ऑफ द एरे, क्योंकि एरे में हम उसके साइज से ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इट मीन्स आई शुड हैव एक्चुअली सम साइज, आई कैन से सम साइज, साइज ऑफ एरे, या हम कह सकते हैं हीप साइज, मैक्स हीप साइज, ठीक, इसको क्या कह सकते हैं, मैक्स हीप साइज। तो यहाँ पे हमें आई हैव टू डिसाइड ए साइज ऑफ द एरे, तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं हमारे पास में इसमें कितने, एक दो कितने हैं, 4 3 7 4 11, तो 11 हमारे पास में साइज है, ठीक है, मैक्सिमम साइज हमारे पास 11 है, इसका मतलब 11 से ज़्यादा हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं इस बाइनरी हीप ट्री में, बाइनरी हीप में। अदर थिंग, ये मैक्स हीप साइज है, बट हमारा करंट हीप साइज क्या है वो हम एक करंट वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक, आई कैन हैव करंट, इसको हम करंट ही वेरिएबल देते हैं, हमारे पास में जीरो इंडेक्स है, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे करंट जो हमारा जीरो है इस पे इंसर्ट करना होगा, तो जीरो पे हम कैसे इंसर्ट करेंगे, सिमिलरली हम यहाँ पे एक्चुअली कोड ही लिखने जा रहे हैं, ठीक, तो क्यों ना हम एक फंक्शन ही बना लें, सिंपल है, क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, और एक हमने एरे भी बनानी पड़ेगी डिक्लेरेशन, ये मान के चलते एज्यूम करके चलो ये हमारा क्लास लेवल वेरिएबल्स है, ठीक है, और एक हम एक काम करते हैं, एरे भी एक क्लास लेवल बना ही लेते हैं, तो एरे हमारे पास होगा इंट टाइप का, बिकॉज आई एम इंसर्टिंग इंट टाइप वैल्यूज, सो इंट एरे, इसको हम इस वेरिएबल हम इतना बड़े बड़े नहीं देंगे क्योंकि हमें बार बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, हम कोई नोट इक्लिप्स आईडी पे काम तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, साइज इसको कर देते हैं, ठीक, एरे आई हैव इंट एरे क्रिएट करना है, चलो न्यू इंट एंड आई कैन ऐड हियर साइज, तो यहाँ पे मैंने एक हीप बना लिया, एम्प्टी हीप, एम्प्टी हीप एम्प्टी बना लिया हीप, और उसका साइज कितना है, 11 है, ठीक। हमारे पास कोई एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम भी सही दे देते हैं, लेट्स से आई हैव मिन सम, मिन, इंसर्ट अभी डालते हैं, मिन की बात छोड़ते हैं, ठीक, बिकॉज आई एम इंसर्टिंग हियर, इंसर्ट आई हैव सम इंसर्ट मेथड, ठीक, इंसर्ट मेथड, एंड हियर बिकॉज यहाँ पे हमने ग्लोबली ले रखा है, ठीक है, बाहर तो आउटसाइड ले रखा है, तो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक एलिमेंट आपको पास करना होगा, यू हैव टू पास एनी एलिमेंट दैट यू हैव वांटेड टू इंसर्ट एक्चुअली, ठीक। सो इंट, और हम यहाँ पे एलिमेंट को हम क्या दे सकते हैं, डेटा बोल सकते हैं, ठीक, यहाँ पे दैट यू वांटेड टू इंसर्ट इनटू माय बाइनरी हीप। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यू हैव टू चेक योर साइज, आइदर दिस करंट वेरिएबल इज इक्वल लेस देन और फ्रॉम इट्स साइज और नॉट, अदरवाइज वी कैंट इंसर्ट, बिकॉज यहाँ पे एरे है, एरे की साइज से ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो एक ये बेस कंडीशन एक तरीके से हो गया कि आप यहाँ पे चेक करो, इफ अगर आपका एरे जो है, सॉरी एरे का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे अगर आपका ये जो करंट है जो है, करंट वेरिएबल है, अगर ये करंट वेरिएबल हमारा कैसा है, लेस देन है, लेस देन है फ्रॉम इट्स साइज, ठीक, तब भी हम इसमें इंसर्ट कर पा सकते हैं एलिमेंट को, तो यहाँ पे हमें लेस देन नहीं लगाना था, एक्चुअली क्या लगाना था, ग्रेटर या इक्वल टू है, ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, और यहाँ पे हम कुछ फॉल्स रिटर्न करते हैं, एक यहाँ पे बूलियन ले लेते हैं, ठीक,
तो यहाँ पे हम false, अगर हम नहीं, I if I am not able to insert here any element, so I have to return false. Not I have to return, actually I am returning. You can do anything. Okay. So next step, because ये हमारा इसका, it means I can insert here, now I can insert element. तो अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। करंट हमारे पास में ये है, तो करंट हमारे पास, बिकॉज जीरोथ इंडेक्स आई डोंट हैव एनी एलिमेंट, सो आई कैन इंसर्ट एट दिस इंडेक्स सिंपली। what I can do, and I can, yeah, array I have, so array, एक चीज मुझे और करनी है, व्हाट आई हैव टू डू हियर, ओके, आई बिकॉज आई हैव टू, I wanted to insert, I can do directly at zeroth index, and because I am inserting, yeah, I one thumb rule I can, yeah, tell you, always you have to add any element at last. This is thumb rule. अगर यहाँ पे, अगर ये हमारे पास this, currently I have this binary heap, okay, and I wanted to insert any element in this binary heap, सो आपको डायरेक्टली कहाँ पे इंसर्ट करना है, इसके जस्ट आफ्टर यहाँ पे। तो इस एक चीज में मैंने आपको नहीं बताया, ये जो बाइनरी हीप है हमारा, ये कौन सी ट्री है, मोस्टली कौन सी ट्री रहती है, व्हाट व्हाट दिस ट्री इज कॉल्ड एक्चुअली, ये आज अभी के लिए बताओ, ये जो ट्री है, ये इसको हम किस ट्री के नाम से जानते हैं, दिस टाइप ऑफ ट्री। हमारे पास मल्टीपल ट्रीज थी, फुल ट्री थी, है ना, बाइनरी में, और क्या कहते हैं, कंप्लीट ट्री थी, अदर भी ट्रीज एक दो थी, मुझे याद नहीं है, बट आपको ये जो ट्री है हमारी कंप्लीट ट्री है, ठीक। कंप्लीट ट्री में रूल क्या होता है कि इसके ऑल द लेवल हैव कंप्लीट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे ऑल लेवल हैव कंप्लीट एलिमेंट एक्सेप्ट लास्ट लेवल, बट लास्ट लेवल में क्या होता है, इसके सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो लेफ्ट साइड होंगे, ठीक। तो ये एक इसकी कंप्लीट बाइनरी की, तो यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ही रहता है हमेशा। तो इसका मतलब है आपको, इफ यू इफ यू आर इंसर्टिंग एनी एलिमेंट एंड इफ यू एबल टू इंसर्ट एनीथिंग, so you have to most insert at last, always at last, you can't means insert in the middle anywhere, okay, why you can't insert in the middle, because if you are going to insert in the middle, and so it means you have to some क्या कर आपको करने, एलिमेंट्स को फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे हटा दिया, तो इसकी जगह पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी एलिमेंट। आप रिप्लेस नहीं करना चाहते हो, तो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको ऑलवेज यू आर इंसर्ट मीन्स यू हैव टू इंसर्ट एट लास्ट ओनली। सो हियर आल्सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, इंसर्टिंग एट लास्ट। सो करंट आई हैव, एंड हियर I am inserting this data, and I have in to increment, करंट में मैंने क्या किया, करंट में इंसर्ट कर दिया और करंट को इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमारा इसका साइज क्या बन गया, वैसे हम साइज यहाँ पे बार बार मेंटेन नहीं करेंगे, बट एक बार फिर भी लिख देते हैं, हमारा साइज क्या हो गया, करंट 1 हो गया, ठीक। और यहाँ पे मैंने चूंकि इंसर्ट कर दिया है, तो देखो जब भी एलिमेंट इंसर्ट करोगे, आई एम इंसर्टिंग ब्लाइंडली विदाउट चेकिंग एनी रूल। After inserting element into binary heap, I have to check either it's following my binary heap property or binary min heap property or not. तो ये आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली यू हैव टू चेक। एक चीज मैं और आपको बता दूं, मान लो अगर आपने लास्ट में, हमारे पास, बिकॉज आई हैव जनरेटेड दिस मीन्स लार्ज बाइनरी हीप एंड आई हैव इंसर्टेड अगेन न्यू नोड, so not only you have to check this condition, this parent only, you have to check all its hierarchy, but complete its path from root to this node, okay, not only this only, because
अगर यहाँ पे मैंने मान लो एज्यूम, लेट्स एज्यूम यहाँ पे मैंने कुछ इंसर्ट कर रखा था जीरो, ठीक, अभी के लिए मानते हैं कि यहाँ पे मैंने जीरो इंसर्ट कर रखा था, ठीक। सो अब ये, अब हमने जैसे ही हमने यहाँ पे जीरो इंसर्ट किया, इट मीन्स आई आई एम चेकिंग ईयर फर्स्ट इट्स आइदर माई पेरेंट्स एंड दिस चाइल्ड फॉलोइंग मिनी प्रॉपर्टी और नॉट। सो इन मिनी पेरेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स शुड हैव मिनिमम वैल्यू। सो तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही चेक किया और मैंने क्या किया, इसको स्वैप करा दिया, ठीक, क्या करा दिया, स्वैप करा दिए। चलो यहाँ पे मैंने स्वैप करके जीरो डाल दिया और यहाँ पे मैंने 9 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 9 कर दिया। अब क्या यहाँ पे आपकी ये जो ट्री बनी हुई है बाइनरी, either it's following your binary property or not following because of break this rule, it's breaks this rule actually here at this place, this parent is not lesser from its child. So it means again you have to check this hierarchy, or you don't have to actually traverse every way, means every node here. That's why means complexity become lesser. Otherwise अगर ये ऑपरेशन आपको पूरी एरे में करना पड़ता तो प्रॉब्लम आता, ठीक है। आपको सिर्फ इसके पाथ में करना है, यानी कि इसके हाइट पे करना है, ठीक है। This is the height only you are calculating, you can calculate here from, because root to leaf path, from root to leaf path, this is from root to leaf path, it means this is height only, you are traversing to height only, height of the binary tree। तो हाइट क्या होगी, उधर ऑलवेज log n होगी। तो मैक्सिमम ऑपरेशन आप क्या कर रहे हो, अगर इफ यू आर फाइंडिंग एनी एलिमेंट, if you are getting any minimum element, you are getting order of one complexity only, but after one complexity you have to do some operations, so that operation you maximum or log n of log n time complexity। ओके, सो ओवरऑल अगर हम गेट मीन का बोलें तो लॉग इन में आप मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। ये चीज़ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, इसकी हायरार्की यू हैव टू चेक फॉर मीन्स टिल द पेरेंट इज पेरेंट, मतलब रूट पेरेंट एक्चुअली। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये सिंपली अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा कि इसके पेरेंट चेक कर लो या पेरेंट हमारा मिनिमम या नहीं है, तो नया काम नहीं चलेगा। इसका मतलब हम या तो फिर इसको लूप में बनाते, ठीक है, वाइल लूप यूज करते, या फिर हम इसके हम रिकर्सिव भी अप्रोच फॉलो कर सके। रिकर्सिव में भी एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं ज़्यादा जाएगी, ठीक है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक। हाउ आई कैन डू, एंड यहाँ पे हम रिकर्सिव भी कर सकते हैं, और क्योंकि मैं लूप के थ्रू भी कर सकता हूँ, ठीक। लूप के थ्रू क्या करना है, मुझे सिंपल ऑपरेशन हमारे पास है, मैंने यहाँ पे न्यू एलिमेंट ऐड किया और पेरेंट मुझे क्या करना है, हमें ऑलवेज, क्योंकि जीरो पर तक हमारा ये जाएगा, क्या जाएगा, ये हमारा जो करंट है। अब करंट को एक्चुअली आई कैन मेड इट आई इंट आई इज इक्वल टू, हम करंट डाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये हमारा मॉडिफाई होगा ना, इसलिए आई डोंट वांट मॉडिफाई माय करंट, ठीक, बिकॉज करंट इज ग्लोबल वेरिएबल, दैट्स वाई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम करंट डाल देते हैं, तो आई हमारा क्योंकि मॉडिफाई होगा, क्योंकि आई मॉडिफाई क्यों होगा, आई हमारा टॉप तक जाएगा डिक्रीमेंटल वे में। तो यहाँ पे हमने करंट डाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं, वाइल लूप, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लूप चलाएंगे और हम चेक, आई हैव टू चेक बेस कंडीशन ईयर, व्हाट इज द बेस, आई हमारा जीरो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, आई जीरो से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट तक हमारा जीरो तक ही मुझे जाना है, ठीक है। तो जीरो तक ही जाना है मुझे, है ना। तो यहाँ पे आई, अगर हम आई नॉट इक्वल टू जीरो तक कर देते हैं, इट मीन्स आई विल गो टिल हियर ओनली, और यहाँ से हम पेरेंट को तो चेक कर ही लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कवर हो जाएगा, अगर हम इस यहाँ तक जाते हैं, इसके पेरेंट को चेक कर लेते हैं, तो हमारा कंप्लीट हो चुका ऑपरेशन जो भी करना था, ठीक है। एंड एक और कंडीशन हमें चेक करनी होगी, जो जो एक्चुअल कंडीशन है इसकी, मेन कंडीशन, क्या मेन कंडीशन हमें चेक करनी, इसका पेरेंट हमारा, पेरेंट क्या होना चाहिए, लेसर वैल्यू होनी चाहिए, लेस वैल्यू होनी चाहिए फ्रॉम इट्स चाइल्ड। सो
एरे हमारे पास एरे है, ठीक है, एरे। और अगर हम आई करते हैं तो आई जो हमारा इस समय क्या है, आई इक्वल आई हमारा लास्ट में है, ठीक है। आई जो हमारा है इस समय क्या था, लास्ट एलिमेंट था, ठीक है। तो इसके आई जो हमारा है, ये आई हमारा इस समय हम जूम कर सकते हैं, हमारा ये आई है। और ये आई क्या, ये जो हमारा आई है, रिवर्स कंडीशन हमें चेक करनी होगी। मिन हिप के, मिन हिप में क्या होना चाहिए, पेरेंट इसका लेसर होना चाहिए। तो हम इसको बोल देते हैं ये लेसर है, ठीक है। अगर हमारा ये लेसर वैल्यू है फ्रॉम इट्स पेरेंट, तो पेरेंट हम फाइंड आउट कर लें, यहाँ पे लिख भी सकते हैं डायरेक्टली, ठीक। पेरेंट हमारा कैसे निकालते हैं इसका, हाँ पेरेंट मैंने आपको नहीं बताया था तो मैं बता देता हूँ। पेरेंट एक्चुअली हाउ आई विल फाइंड आउट पेरेंट, if you have any if you are at any node here, any node actually, any place, okay, in the binary heap, if you wanted to find out its parent, so you can follow this formula I minus 1 by 2, ठीक। इस फार्मूले के थ्रू आप पेरेंट पे जा सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कहें, अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। अब हम इस समय 11th पोजीशन पे हैं, हमारे पास आई क्या है, 11 है, आई 11, तो इसका पेरेंट क्या होगा, 11 माइनस 1 बाई 2 मीन्स 10/2 मीन्स 5। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो देखो जस्ट यहाँ 5 पे पहुँच गई नहीं, तो इसका मतलब ये प्रूव्ड रूल, ठीक है। तो इस मीन्स आई कैन ये पेरेंट लिख सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आई माइनस 1 बाई 2, इस तरीके से। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब यहाँ पे इसका ये मीन हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, जब तक अनटिल इज नॉट फॉलोइंग मीन हीप प्रॉपर्टी आई हैव टू ट्रेवर्स, सो इट मीन्स आई हैव टू स्वैप एलिमेंट। तो यहाँ पे आप स्वैप करोगे, ठीक, यहाँ पे आपको स्वैप करना होगा, किसको स्वैप करना होगा, यू हैव टू स्वैप इट्स पेरेंट एंड चाइल्ड। सो पेरेंट इसमें क्या है, हम पहले तो एरे पास करनी होगी, तो एरे पास कर देते हैं, ये अलग मेथड चूंकि है ये। और इसके बाद में हमारा करंट हमारा क्या है, आई है, और इसका पेरेंट क्या है, पेरेंट हम कल निकाल भी सकते हैं, बट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आई माइनस 1 बाई 2। तो एक मेथड भी बना सकते हो पेरेंट लेफ्ट राइट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक, इस तरीके से। और इसके बाद में जब आप स्वैप कर दोगे, इट मीन्स दिस इज दिस सब ट्री हैज बीन चेक्ड नाउ, सो नाउ यू हैव टू ट्रेवर्स टू इट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट टू पेरेंट। तो यहाँ पे अब हम इसको पेरेंट टू पेरेंट, यानी कि इसके पेरेंट टू पेरेंट पे जाना है, ग्रांड पेरेंट पे जाना है, तो इसका मतलब क्या है, इसको पेरेंट बनाना पड़ेगा, किसको, इस आई को। आई अभी हमारा करंट नोड पे था, अब इसको हम पेरेंट, इस पे पेरेंट डाल देते हैं, पेरेंट क्या होगा, आई माइनस 1 बाई 2। ये अगर हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो अब इसका इस समय हमारा करंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जब हो जाएगा, तो फिर से हमें क्या करना होगा, टॉप पे यहाँ पे आई बिकॉज इज नॉट एट 0 एंड बिकॉज ऑफ इट्स एट 5, फिफ्थ इंडेक्स ईयर नाउ, आई इस समय क्या है, फिफ्थ इंडेक्स पे है, ठीक। ए सॉरी, आई मैं 5 पे, इस पे नहीं मॉडिफाई, मैंने बोला ना इसको मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है, इसको ही मॉडिफाई आई हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। आई हमारा इस समय किस इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे है, तो इट मीन्स अगेन आई नॉट इक्वल टू 0 एंड फिफ्थ इंडेक्स 0, आई ओके दिस। देखो यहाँ पे अभी मैंने इसको रूल को पहले ब्रेक कर दिया, क्योंकि पहले से इसको सॉल्व कर दिया, तो ये लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज अगर प्रीवियस कंडीशन यहाँ पे होती तो लूप ब्रेक नहीं होता, ठीक है। एज्यूम कर लो कि हमारा ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर चुके हैं, एक इटरेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं स्वैप वाला, ठीक है, तभी ये हमारा प्रॉपर्टी सही हुआ है। सेकेंड इटरेशन अगेन यू हैव टू डू फॉर आई इज इक्वल टू 5 एंड इट इज 5 वैल्यू बिकॉज इज लेसर फ्रॉम इट्स पेरेंट, so it means again you have to swap, so you are swapping here 0, you are doing here 0 and here you have to add 2। अब ये नीचे ब्रेक नहीं होगी प्रॉपर्टी, ठीक, क्योंकि आपने ऊपर से मिनिमम वैल्यू को उठा के नीचे डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अब 0 हो गया, इट मीन्स आई बिकम्स नाउ आई एट वॉज एट 5,
सो यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 - 1/2 यानी कि 5 - 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। तो आप देखो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे आ गए, इस जगह पे आ गए। ठीक, तो अब यहाँ पे बिकॉज आई नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो, आई जीरो, एरे जीरो एक्चुअली हैव जीरो वैल्यू एंड इट्स लेसर फ्रॉम इट्स पेरेंट। पेरेंट क्या है, वन, जीरो इंडेक्स वन है वैल्यू, तो ये लेसर है, तो इट मीन्स यू हैव टू अगेन स्वैप फ्रॉम इट्स पेरेंट, दिस वैल्यू यू हैव टू स्वैप फ्रॉम इट्स पेरेंट। ये स्वैप हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा, यार ये इरेजर बार बार जल्दी से नहीं आता है, वन और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बना देते हैं। अब यहाँ पे अगेन you have to calculate its parent, तो 2 - 1/2 becomes 2 - 1/2 becomes 0। सो जीरो इंडेक्स पे आ जाओगे, जीरो पे चेक करोगे बिकॉज इट्स एट जीरो, सो लूप विल बी ब्रेक हियर। एंड लूप जब ब्रेक हो जाता है बिकॉज यू आर रिटर्निंग सम ट्रू एंड फॉल्स, सो यहाँ पे लास्ट में ट्रू रिटर्न कर दो क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। ठीक, तो ये हमारा इंसर्ट इस तरीके से मिन हीप के लिए हम कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, so I'll cover other thing in next lecture. But I wanted to write code, लेकिन यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कोड, वैसे मैंने पूरा ही लिख दिया आपको। ठीक है, आई डोंट हैव टू, बट लास्ट में मैं कोड करूँगा जब मीन मैक्स से सारा कुछ मैं कवर कर लूँगा, तब मैं लास्ट में कोड कर दूंगा इसका। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, और लास्ट में पूरा मिन मैक्स जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारा कोड में करके आपको, बट ज़रूरत भी नहीं है मेरे को, अगर लगता नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और यहाँ पे मैं आप रिटर्न भी कर देता हूँ आपको, यहाँ पे रिटर्न जीरो, रिटर्न ट्रू, ट्रू। ठीक, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, बाय।